में हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रोल में मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल में संदेशखाली में जो पिछले 2 महीने से हो रहा है वहां पे, उसके बारे में मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी है। इसलिए ये जो अभी की इंटरैक्शन है उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ और उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हैं, उस पर कुछ आपके साथ अपने असेसमेंट शेयर करना चाहूंगा। संदेशखाली, the place has acquired a certain notoriety. आपको पता है ये कहां पे situated है। There are hundreds of islands in the Sundarban Delta, जहां पे गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। It is surrounded by a web of tidal waterways, rivers, canals. The island's water ecosystem is rich in nutrients और फार्मिंग फिश के लिए it's a very fertile place. 2011 का जो सेंसस था हमारा, उसमें यहाँ की जो जनसंख्या है 49% हिंदूज, 30% मुस्लिम्स, 15% क्रिश्चियंस संदेशखाली 1 ब्लॉक में, और 30% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट है, 26% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और संदेशखाली आइलैंड इटसेल्फ is mostly inhabited by scheduled caste and scheduled tribe farmers and fisher folk. मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जैसे आपको जानकारी है, दी टीएमसी लीडर, शायद उन्होंने टीएमसी को 2013 में ज्वाइन किया था, शाहजहां ने, वो इस एरिया के एक किस्म से मैं क्या शब्द बाहुबली हैं, जो उस जमीन को वहां लोगों से करते थे एक्सप्लॉयटेशन, पर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुई है वहां उसके बाद, और वहां पे एक मनी लॉन्ड्रिंग भी का था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक इन्वेस्टिगेशन थी, और ये आई थिंक दिस इंसिडेंट्स आर ऑफ अर्ली जनवरी, शायद 5 जनवरी के आसपास। तो पहली बात तो 55 दिन somebody who's known by the entire population to have been involved in the committing of these atrocities, उसको पकड़ ही नहीं रहे थे। जब ये मामला आगे बढ़ा, और आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां की जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने एजिटेट किया, और ये जो कल की कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है 169 of 2024 with 191 of 2024, State of West Bengal and others versus Enforcement Directorate, Kolkata Zone Officer and 1, मैं ये रिजर्व की गई थी 4 तारीख को, डिलीवर हुई है 5 के। इसके कुछ मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूं, so that you will get a full picture. ये आई एम गोइंग टू पैरा 14, और इसमें इन्होंने कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट की जजमेंट में, thus this act of the state police meaning West Bengal police, would be sufficient to hold that the state police are totally biased and every attempt is being made to delay the investigation in order to protect the accused, who has been absconding for more than 50 days. The then absconding accused is stated to be a strong man in the locality, I had used the word Bahubali, and has very powerful connections in the ruling party, apart from having been elected as a Karmadhyaksh of Zilla Parishad, North 24 Parganas, having been fielded as a candidate of the ruling dispensation. Ruling dispensation ka matlab hai TMC. The state police had played a hide and seek methodology in all probabilities to shield the accused, who undoubtedly is a highly politically
influential person who has demonstrably shown that he is and would be in a position to influence the investigation if allowed to rest with the state police. मैं extract पढ़ रहा हूं आपको. The case has been registered by ED investigating into the public distribution system scam involving highly politically powerful persons, which include the accused Shah Jahan. Thus, what is required is a fair, honest and complete investigation, and this alone will retain the public confidence in the in the impartial working of the state agencies. We have no hesitation in our mind to hold that this confidence has been shaken, and there can be no longer a case that the case on hand requires to be transferred to to be investigated by CBI. The learned single bench has recorded paragraph 10. I'll skip the first. तो क्या हुआ है? एक तो स्टेट पुलिस पहले अक्यूज्ड को, शाहजहां को गिरफ्तार नहीं होने दे रही. दूसरा, when he is produced, आपने वो विजुअल क्लिप्स देखे हैं, he is marching there when he is going to a court as if he is leading a victory procession. I think he is also making a V sign. और उसके बाद क्या होता है? मैं बाकी जजमेंट आई स्पेयर यू, बट एक पर बताऊंगा. एक फाइनल पैरा मैं 17 पैरा से पढ़ रहा हूं. Thus it has become imperative and absolutely necessary for doing complete justice and enforcing the fundamental rights of the public in general and the public of the locality that the case be transferred to the CBI for an investigation and process further. तो एक क्या है? State police is completely biased. उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही. They are not handing him over. और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ who is appealing to the Supreme Court? This is a very interesting question. Normally जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होते हैं, he tries to go up. No, it's not that person who's appealing. It's the state government which is coming to the Supreme Court. ये मैं पहली बार I'm coming across a case like this. And they're appearing to sue what? Ki a man who, according to information in the public domain, सबको पता है इसने क्या किया वहां पे, कि उसको प्रोटेक्टिव कवर मिले. देखिए, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं. उनके जो बिहाफ पे वकील काउंसिल अपीयर कर रहे हैं, I will stick to the position that he's appearing on behalf of the state government, but appearing for this person. I'm not going to talk about his political affiliation, कौन सी पार्टी के लीडर हैं, etc. मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं. But कुछ इंसानियत भी होती है. And a situation where women have agitated. ED officers have gone there and so it's not only a complete breakdown in the law and order situation, but उनकी जो value system है, और ऐसे आदमी को स्टेट गवर्नमेंट कह रही है इसको मत ले जाइए. अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? व्हाट आई हैव सीन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन की द मैटर वाज केम अप बिफोर जस्टिस संजीव खन्ना. उन्होंने तो ही सेड दैट इट शुड बी लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ द चीफ फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और वहां पे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए बोला गया है. बट एट दिस स्टेज ऑल्सो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ great shame and highly condemnable that a state government allows this kind of an incident to take place. Then for 55 days, they don't allow him to be arrested. And then when he is produced, he comes there before the court as he was saying, and still not handing him over. And investigation should not go to a central agency. So I had these few comments to make. I have a lot of material, but मुझे लगता है कि आप सब में इसके बारे नॉलेज लेवल मेरे से ज्यादा ही होगा. बट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आई वांटेड टू कवर. आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस आपके हो तो. I just wanted to add. या प्लीज, सॉरी शाजिया जी, प्लीज ऐड. No. बहुत ही शर्म की बात है, और एक महिला होने के नाते बहुत ही शर्म की बात है. एक महिला होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे देश में एक ऐसी राज्य सरकार है जिसकी महिला
मुख्यमंत्री चीखें नहीं सुन रही हैं हमारी दलित आदिवासी बहनों की, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी है जिसके चलते उन्हें जहांपना शहंशाह को बचाना है। ऐसे क्या राज हैं जिसका पर्दाफाश होने से वो डर रही हैं? सोचने वाली बात है, चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे NHRC हो, चाहे ईडी के समन्स हो, चाहे सीबीआई की टीम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो। ऐसा क्या है और क्या वजह है कि ममता बनर्जी खुद इस शेख को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही हैं? हमारे, जैसे कि हरदीप जी ने अभी भी बताया, हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके तहत जो उनकी पुलिस है बाकायदा संरक्षण दे रही है एक ऐसे इंसान को जिसने वहां की महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि अब सीबीआई, कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और सख्त टिप्पणी के बाद भी अभी भी जहांपना शहंशाह शेख साहब को बचाया जा रहा है। बहुत ही तकलीफदेह हालात हैं वाकई में। और मेरी अपील ये है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कि नारी शक्ति का आक्रोश आप देखेंगे सड़कों पर, क्योंकि ये सारा मूवमेंट भाजपा ने नहीं शुरू किया है या किसी विपक्ष के नेता ने, राज्य सरकार, वहां की महिलाओं की ये गुहार और आवाज है। और आप देखेंगे उसी आक्रोश का नतीजा बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो कह रहे हैं, आई एम हियरिंग यू, ये पॉलिटिकल कॉल होती है और ये मेरे पे ग्रेड से बाहर की है। पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट है कि वो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एवरीबडी नोज इट। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमने पिछले बारी कुछ एनालिसिस किया था कि कितनी बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 56 यूज किया। और मुझे पूरा था कि एक कांग्रेस की सरकार होती थी, एक बार तो उन्होंने 100 इंस्टेंसेस में यूज किया था। और उनके एक प्रधानमंत्री ने, मैं क्या नाम लूंगा, 50 बार से अधिक उन्होंने किया। ये हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं बीजेपी के, कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को नॉर्मली अपना काम करने देते हैं। But this is a situation where democratically elected government is reinforcing the public perception कि वहां पे total breakdown है। देख मैंने कि वहां पे हिंसा के चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले हुए। अभी शाजिया जी भी बता रही थी, आपने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए उनकी आपने स्टेटमेंट वाली, आई डोंट वांट टू गो ओवर देम। बट मुझे लग रहा है कि ये जो हाई कोर्ट के ऐसे स्ट्रिक्चर के बाद स्टेट गवर्नमेंट कम्स टू द सेंटर एंड डज नॉट वांट टू अलाउ इवन द व्हील्स ऑफ जस्टिस टू ग्राइंड इवन आफ्टर दिस, ये मुझे लग रहा है इट्स अ न्यू फॉर मी। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग अक्रॉस कि एक रेपिस्ट को, somebody who's accused of all this अत्याचार on mostly आदिवासी and Dalit women, मैं तभी अब पॉपुलेशन का भी मैंने आपको बताया एटसेट्रा। तो क्या हमारा वैल्यू सिस्टम है ये? हमारे विपक्ष के जो दल हैं, और मैंने, आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ, आई हैव नॉट हर्ड एनी स्टेटमेंट फ्रॉम दी सो कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टीज जो वो किस किस्म की, यार क्या इंडिया अलायंस या कुछ नहीं। I mean, this kind of an incident should have been condemned in the strongest terms. पहले कह लीजिए अच्छा ठीक है, इसमें आपकी व्यू और हमारी व्यू में थोड़ा अंतर है, फैक्ट्स पे हो सकता है, नहीं किसने पहले किया, किसकी पिटाई हुई एटसेट्रा, बट नाउ इट्स ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद भी आवाज नहीं उठाते हैं। सो आपका, मैंने जो सवाल आपने पूछा, मैंने बड़े केयरफुली उसको अवॉइड किया आंसर करने को। उसका कारण आपको पता होगा, क्योंकि
ये हमारी पॉलिटिकल कल्चर में नहीं है, पर मुझे लगता है इसका जवाब जो है ये वहां के जो हमारे मतदाता हैं उनसे मिलेगा. दैट इज माई टेक ऑन इट. एंड मैं भी फेमिनिस्ट हूं, और ये जो नारी शक्ति होती है, जहां पे एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से हम विमेन लेड डेवलपमेंट में आ रहे हैं. एक तरफ देश को मोदी जी एक तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरी जी स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर हु हैपेंस टू बी अ लेडी. दिस इज हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स. पीयूष त्रिपाठी. तो वो तो साजिया जी पूछ रही है ना, क्या क्या ऐसी कंपल्शंस है उनकी, या कैसा खुला. तो भाई मैं इन चीजों पे स्पेक्यूलेट नहीं करता. आई एम अ लिटिल ओल्डर देन यू एंड माई लिटिल मोर एक्सपीरियंस. वो तो बाहर आ जाएगी बात, इसमें कोई छुपने की बात ही नहीं है. यू सी, अब जैसे देयर आर सो मेनी वुमेन देयर हु हैव कम फॉरवर्ड, हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ दीज अट्रॉसिटीज, और अब ये चीज बाहर आ रही है बड़ी तेजी से. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा समय दीजिए. उनका क्या कारण है, किस लिए वो इसको कवर देना चाहते हैं. संरक्षण दे रहे हैं. हाँ, क्या नाम है, शेख शाहजहां नाम भी है. नीरज पांडे, एबीपी. ईडी जाती है, पिटाई हो जाती है, बीजेपी के लोग जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं. सीबीआई को पहले ही विपक्ष की कई सरकारों ने राज्य में घुसने से मना कर रखा है. तो आपको लगता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सीबीआई को ट्रांसफर किया है, इससे न्याय मिल जाएगा, या कुछ और कोई रास्ता अपनाने की जरूरत है? नहीं, देखिए ऐसी सिचुएशन में, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप देखते हो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं. अगर स्टेट पुलिस, अकॉर्डिंग टू द कैलकाटा हाई कोर्ट, आई रेड आउट द एक्सट्रैक्ट, आई द एक्सट्रैक्ट, दे आर सेइंग दैट टोटली बायस्ड. तो वहां से तो आपको न्याय मिलने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं लगती. अगर ऐसी सिचुएशन है और ईडी के लोगों की पिटाई करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन शुड गो, बट दे शुड हैंड ओवर दिस मैन. बट ये क्या कर रहे हैं, हर एक चीज में रुकावट डाल रहे हैं. और 50-55 दिन हो गए ऑलरेडी. तो मैं समझता उस पर भी यू वांटिंग टू कम टू द सेंटर टू गेट अ स्टे. So I'm not going to comment on that, because from what I can see that it is going to be mentioned here. I'm just talking about what the Calcutta High Court has said and done. आनंद. आपने देखा कि जैसे ही हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा, तो उसके बाद सीबीआई अधिकारी इसकी कस्टडी लेने आरोपी की गए थे थाने, उसको नहीं दी गई सीबीआई को. और कुछ दिन पहले एनसीपीसी में एक आंकड़े आए थे बंगाल से, उसमें बताया गया था 83 ओबीसी जातियों में 73 एक विशेष मुस्लिम समुदाय से थी. तो आपको क्या लगता है, जो आरोपी का नाम है और एनसीपीसी को जो उसने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के लिए किया जा रहा है? See, I don't want to go into this कि किस लिए किया जा रहा है, किसकी क्या मोटिवेशन. यहां पे द मैटर इज वेरी सिंपल. एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है. वो भी ये नहीं कह रहे कि ऑफेंस नहीं हुआ, बट दे आर गिविंग हिम कवर. उसके बाद आप उसको ले जाते हो. ओके, ही हैज द डिमीनर, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ a person who is fully confident, etc. उसके बाद it doesn't go forward, or you come to the Supreme Court then. तो मैं just sticking to that part, because अगर मैं उस बाकी देश में, I also have views, but I am here speaking as a BJP कार्यकर्ता, as a BJP representative, so I want to be technically correct. कमलेश. तो वो क्या पॉलिटिकल गेन के लिए रेप करवा रही हैं? क्या बच्चों वाली बात है. प्रज्ञा. ये तो वहां से आया है भाई, कोर्ट से आया है. प्रज्ञा. लास्ट. हाँ. Who speech? ए राजा. No, I think my learned friend needs to re-educate himself on what India is, what Bharat is. You know, it's one of the it's one of the three great civilizations. Plus, it has developed into the world's largest democracy. It is the mother of democracy. Pata nahi which side of the bed Mr. Raja got out in the morning and say he's talking about balkanization. छोड़ दीजिए. I think इन्होंने वो पंजाबी का ना मत मारी गई है. बहुत बहुत धन्यवाद.